Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your teacher Dr. Noor Muhammad, and you are watching me in A-Level Biology lecture series, subject code 9700, and we have started our syllabus in this week, and we have almost taken your 3 or 4 lectures up till now, and we are doing chapter number 1 in combination with chapter number 4, and both the topics are related to cell. So in the previous lecture, if you remember, that we were talking about in general about the cell, that cell is confined by a boundary, and everything that is within that boundary of cell membrane is protoplasm, and we talked about the division of protoplasm into a darker region or a lighter region, denser and less denser region, into cytoplasm and nucleoplasm, and we also discussed about cytoplasm as well. We discussed some very basic points about cytoplasm, that it consists of number 1, cytoplasmic organelles, and number 2, the fluid of the cytoplasm, which is continuously revolving within the cytoplasm, and that movement or revolution or rotation or circulation of that fluid is called cyclosis, and that cyclosis is important. It's really important in intracellular transport, that is transport within the cell. When we require to transport one substance from point A to point B in the cell, then this cyclosis has to play a very important role. So up till now we have discussed till this point, and I've told you that we'll cover cell from outside to inside, or we'll not be talking about cell in particular reference to animal or plant cell. I'll be giving you structures, maximum number of structures, and we'll talk about each structure, and then जब हम plant cell या animal cell को अलग से बताएंगे, तो फिर हम sort out कर देंगे कि these are the structures जो कि animal cell में हैं, और these are the structures जो plant cell में हैं. So let's begin the discussion now. Now we all have the idea of the cell, that it is the membrane which surrounds the whole living substance, and then in that living substance we have a lot of things. तो हम चूँकि बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो जो पहला स्ट्रक्चर आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो सेल में हमने पढ़ना है, that is सेल वॉल. तो पहला स्ट्रक्चर आज हम आपके साथ कवर करेंगे, दैट इज सेल वॉल. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल, दैट व्हाट सेल वॉल इज. ओके, सो cell wall, you all have heard the name of this cell wall, and what we are going to do, we are going to first talk about the general points of cell wall, the general points that you must have already done in your O levels, and then फिर हम उसकी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल वॉल, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड, दैट इट इज़ द outermost membrane in plant cell. It is the outermost membrane in plant cell. It is the outermost membrane in plant cell. ठीक है जी. पहला पॉइंट जो हमारे पास क्या आ जाता है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, यानी जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इट इज़ द मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर मोस्ट है और सबसे आखिर में आ रही होती है. बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो फर्स्ट जो मेम्ब्रेन हमारे पास आ रही होगी, दैट वुड बी सेल वॉल. ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया. सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पर जानना है वो क्या है, इट इज़ नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ कि दीज आर ओनली द एनिमल सेल जिनमें सेल वॉल नहीं होती. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. देखो, हम लोग जब भी बात करते हैं सेल वॉल की, या ओ लेवल्स में जो आपने डिस्कशन सुनी थी सेल वॉल के ऊपर, वो ये डिस्कशन थी कि भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. लेकिन चूंकि वहाँ आप सिर्फ एनिमल और प्लांट की बात कर रहे थे तो आप सिर्फ उनमें कंपेयर कर लेते थे, बट यहाँ हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव ले रहे हैं, और उसमें जो ट्रूथ है वो ये है कि इट इज़ ओनली द एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती. इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर हैं, इवन वो प्रोकैरियोटिक ही क्यों ना हो, जैसे बैक्टीरिया है, उसमें भी हमें सेल वॉल नज़र आती है. सेल वॉल इज़ एवरीवेयर अदर देन एनिमल सेल. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मेंशन हियर इन द सेकंड पॉइंट, कि इट इज़ प्रेजेंट in every organism except animals.
in this structure of cell wall is present in every organism. The only exception where we don't have cell wall is animal. ठीक है, अब यहाँ पर it might the question might come into your mind that why is this injustice to us that we don't have cell wall? Every other organism like bacteria have cell wall. बैक्टीरिया विच इज़ प्रोकैरियोटिक, इवन मतलब इसकी बॉडी में एक कंप्लीट सेल भी नहीं है, स्टिल उसके पास जो है वो सेल वॉल है. फंजाई हैव सेल वॉल, एंड अभी हमने डिस्कस किया प्लांट्स में तो होती ही है सेल वॉल. तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म जो हैं, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल. ओनली दीज आर एनिमल्स जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एंड वी विल टॉक ऑल्सो कि ऐसा क्यों है. व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, वहाँ पर हमें ये रियलाइज़ होगा कि एनिमल सेल में जो सेल वॉल नहीं है दैट्स बेनिफिशियल फॉर अस, एंड बाकी जगह पर जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट सेल वॉल, जब वॉल का वर्ड आ रहा है, सेल वॉल में आप वॉल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ क्लियरली शोइंग दैट इट इज़ a tough and rigid structure. It is a tough and a rigid structure. ठीक है, सेल वॉल का जब हम नाम लेते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज दैट सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चर दैट इज टफ, दैट इज रिजिड. ठीक है, एक हार्डनेस का आपके दिमाग में एक विजुअल क्रिएट होना चाहिए. तो इट इज़ अ वॉल जो कि क्या करती है, एक टफ स्ट्रक्चर है या एक रिजिड स्ट्रक्चर है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ देयर एक्चुअली दैट दिस it is the outermost membrane plus it is tough, rigid. So what is the major function of the cell wall in any organism? That it provides frame to the cell, thus maintains the shape of the cell. क्या मेंशन किया हमने कि as it is a tough and rigid structure, the primary function of cell wall in any cell like plant cell, animal cell, fungal cell, bacterial cell, the primary function of the cell wall is to keep the shape of the cell regular. देखो, जैसे आपने अगर एक क्लोथ का लेट सपोज आपने कोई पेंटिंग परचेज की है एंड दैट पेंटिंग इज ऑन क्लोथ, तो अगर आप उसे डायरेक्ट लगाओगे तो वो हिलती रहेगी, मूव करती रहेगी. तो आप क्या करोगे, उसके चारों तरफ जो है ना आप एक फ्रेम बनवा लोगे, वुडन फ्रेम बनवा लोगे और फिर उसको फिक्स करोगे, तो दैट विल कीप इट सेल्फ स्टिल. तो इसी तरह से सेल वॉल का भी जो हमारा काम है ना वो यही है कि सेल वॉल क्या करती है, जिस सेल के अंदर इट इज़ देयर, तो वहाँ ये क्या करती है, एक आउटर फ्रेम प्रोवाइड कर देती है जिससे सेल के अंदर जो है ना एक शेप में उसकी रेगुलरिटी आ जाती है. फ्रेम की वजह से, फ्रेम सपोर्ट की वजह से जो सेल है उसकी शेप रेगुलर हो जाती है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हैव रेगुलर शेप्स. ठीक है ना, एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स की जो शेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होती हैं, बिकॉज वी नो नाउ कि एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. बट एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, जो प्लांट हैं, फंगल सेल्स हैं या बैक्टीरियल सेल्स हैं, दे डू हैव रेगुलर शेप्स. अगर आपको याद हो, इवन ओ लेवल्स डायग्राम्स के अंदर अगर आपको याद हो, तो जहाँ पर भी प्लांट सेल शो किया जाता है, इवन बैक्टीरियल सेल शो किया जाता है, तो एक बड़ी रेगुलर सी शेप में शो किया जाता है. एंड दैट रेगुलरिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सो इट इज a rigid structure, tough structure which provides support or frame to the cell, and at the same time allow cell to tolerate turgor pressure and prevent it from bursting. ये पॉइंट भी आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं कि बिकॉज इट इज अ टफ स्ट्रक्चर, तो नॉट ओनली इट इज प्रोवाइडिंग फ्रेम टू द सेल, इट इज प्लेइंग इट्स रोल टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल, बट ड्यू टू इट्स टफनेस, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ,
cell wall is responsible to tolerate the internal turgor pressure created due to high water potential of the cell. It is responsible also to tolerate high turgor pressure created as well as by cell sap within the cell, and this is why जो cell wall contain करते हैं वो burst नहीं होते, क्योंकि cell wall पे जब अंदर से pressure आ रहा होता है due to its rigid and tough structure वो उसको tolerate कर जाती है, whereas animal cells क्या होते हैं वो burst हो जाते हैं because they don't have cell wall. So cell wall के बारे में अगला point क्या लिखा हमने, that they allow the cell to tolerate the turgor pressure and that is why prevent them from bursting. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी मेंशन करनी है जो अब मैंने बताया भी कि why animal cells do not have cell wall और उसमें हमारा क्या बेनिफिट है. देखो प्लांट्स के अंदर कोई स्केलेटन सपोर्ट नहीं है, प्लांट्स के अंदर कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना. हमारी बॉडी है, जितने भी एनिमल्स हैं, नेचर हैज़ गिफ्टेड देम स्केलेटन्स, ठीक है. नेचर ने उनको क्या दिए हैं, स्केलेटन्स दिए हैं. हमारे पास इंटरनल स्केलेटन है, बाज़ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल स्केलेटन, जैसे आप टर्टल में देखते हो. बाज़ ऑर्गेनिज्म में हाइड्रो स्केलेटन है, वाटर, जैसे जेलीफिश है, तो जेलीफिश के अंदर जो वाटर है ना वो खुद एक स्केलेटल फ्रेम प्रोवाइड करता है. तो एनिमल्स के अंदर चूंकि एक मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फ्रेम चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द शेप ऑफ ओवरऑल द बॉडी, तो उसी हिसाब से उसी लेवल का स्केलेटन इज गिफ्टेड टू एनिमल्स. वेयर एज प्लांट्स के अंदर क्या है कि आपको क्योंकि और कोई स्केलेटन नहीं है तो हर सेल को अपना शेप मेंटेन करना है और हर सेल को सपोर्टिव रोल प्ले करना है, एंड फॉर दैट पर्पस प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है ना आर प्रोवाइडेड विद सेल वॉल्स, सो देयर सेल्स आर एबल टू मेंटेन देयर शेप. प्लस ये कि देखो हमारे अंदर लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर देयर. इसके अलावा जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं या इवन के प्लांट्स की बात करते हैं, वहाँ मूवमेंट नहीं है. अब मूवमेंट नहीं होने से क्या है कि वहाँ पर द अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर देम इज नॉट दैट मच. वाई? बिकॉज दे डू नॉट नीड टू मूव सो मच ना बैक्टीरिया को मूव करना है ना, अगर मूव करना भी है तो हवा या पानी के साथ मूव करते हैं. बट वी द एनिमल्स have this function of locomotion and we are moving from one place to another on our own. And to do that we require a lot of flexibility. Imagine करो ना कि अगर तुम्हारे हाथ में flexibility ना हो तो movement कैसे होगी. अगर ये हाथ ऐसा हो जाता है due to hard frame तो क्या हो जाता है, क्या उसमें flexibility होती है, क्या आप उसको move कर पाते, नहीं कर पा सकते. आप दौड़ नहीं सकते थे, आप भाग नहीं सकते थे, आप बैठ नहीं सकते थे, आप उठ नहीं सकते थे, बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है उसका हर सेल इंतहाई रिजिड स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है. तो हमारे लिए चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी वॉज रिक्वायर्ड तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें सेल वॉल नहीं दी गई है, एनिमल्स को भी नहीं दी गई है, ताकि वो रेंज ऑफ मोशंस परफॉर्म कर सकें. फिर इसी तरह हमारा रेड ब्लड सेल है, उसको पूरी बॉडी में से गुजरना है, ठीक है ना. अगर वो फ्रेम उसका फिक्स्ड हो जाता और शेप उसकी फिक्स्ड हो जाती तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो नैरो वेसल से गुजर रहा होता तो वाइल इट इज पासिंग थ्रू नैरो वेसल्स तो वहाँ वो जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता था, वहाँ पर वो फंस सकता था. बट ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी वो वहाँ से स्क्वीज करके निकल जाता है. तो हमें स्केलेटन, हमें जो है सेल वॉल ना देने का बेनिफिट क्या है कि वी एज एन एनिमल रिक्वायर लोकोमोटरी फंक्शंस. Flexibility is the need of our body. So therefore what we see is that हमारे पास सेल वॉल नहीं है जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता. एट द सेम टाइम जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है तो सपोर्ट कहाँ से आएगी, तो सपोर्ट के लिए वी आर गिफ्टेड विद अनदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम स्केलेटन कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि वी गॉट एंडोस्केलेटन, सम ऑर्गेनिज्म हैव गॉट एक्सोस्केलेटन. लाइक इंसेक्ट्स के अंदर आपने देखा होगा बाहर से जो है ना हार्ड कवरिंग्स होती हैं, जैसे कॉकरोच के अंदर आप देखें इस तरह के, तो वो कवरिंग्स हैं, वो उनको सपोर्ट दे रही हैं. और सम ऑर्गेनिज्म में इवन हैव हाइड्रोस्केलेटन, ये वाटर का उसके अंदर जो है ना वो स्केलेटन क्रिएट हुआ होता है. दैट्स समथिंग टिपिकल व्हिच शुड नॉट बी डिस्कस्ड एट दिस लेवल, बट these are the basic points that you should remember. एक पॉइंट और रह गया है, जस्ट लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, फिर आप नोट कीजिएगा. वो क्या है कि whenever we talk about any membrane or any layer, it is always a discussion that is this membrane permeable or impermeable or semi-permeable. Yani whenever we discuss any membrane, it's really important that we talk about the permeability of that membrane. Permeability से क्या मुराद है कि how that membrane behaves in permitting the substances to pass through it. How a membrane behaves or allowing, or is the membrane allowing substances to pass through it?
ठीक है ना. तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ परमिएबिलिटी. तो व्हेनेवर वी स्टडी एनी मेम्ब्रेन, तो देयर कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी. वन इज impermeable, that which means कि this membrane is totally impermeable, it is not going to allow anything to pass through. ठीक है, किसी चीज को भी अलाउ नहीं करेगी. दूसरा क्या है, permeable, कि दिस इज द काइंड ऑफ मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू. हर चीज को वो पास थ्रू करने को कर देगी. एवरीथिंग कैन कम अक्रॉस और पास अक्रॉस दैट मेम्ब्रेन. और थर्ड आ जाती है सिलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ मेम्ब्रेन which does not allow everything to pass through. It will only allow selective things to cross. सिर्फ selective चीज़ों को ये allow करेगी कि क्रॉस कर जाएं. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और इसकी बड़ी कॉमन लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. उम्मीद है कि आपको उससे और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक कमरा है या आपके पास एक ऑफिस है और आपने क्या किया है कि उस ऑफिस का जो डोर है वो आपने खोल दिया एंड नोबडी इज देयर टू वॉच. So what can happen is that when the door is open, it means everybody can come in and come out. ठीक है. Although कि जो wall है आपके ऑफिस की, that should be acting as a membrane, a barrier. ठीक है. But as the door is completely open, so everything can come and go out, come in and go out. Every person can come in and go out. ठीक है ना. तो इस wall is providing the support, but at the same time it is not restricting the movement of particles or substances or persons from through it. ठीक है. On the second hand, or in the second case, you have closed the door. ठीक है. You have closed the door and the door is locked. ठीक है. So what would happen now? That wall is there which is giving the support, but as the door is closed, so now the substances or now the persons who are inside can not go outside, and the persons who are outside cannot come inside. So basically this has become now impermeable for any person. क्या हो गया? impermeability आ गई, यानी ना ही अंदर की चीज बाहर मूव कर रही है ना बाहर की चीज अंदर मूव कर रही है. ठीक है जी. दैट्स impermeability. ठीक है. अच्छा, हाउ वी एक्सप्लेन सेमी परमिएबिलिटी थ्रू दिस एग्जांपल. लेट्स से आपके पास ऑफिस है, उसमें डोर भी है, डोर खुला हुआ है लेकिन साथ एक गार्ड बैठा हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड विद गन बैठा हुआ है, और आपने एक चिट लगाई हुई है कि ऑथोराइज पर्संस ओनली. ठीक है ना. सिर्फ ऑथोराइज पर्संस ही एंटर हो सकते हैं या जा सकते हैं. अब क्या होगा, अगर कोई चीज़ बाहर से आई है और वो ऑथोराइज नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू गो इन. और इसी तरह अगर कोई टाइम जो है ना कोई चीज़ अंदर से बाहर जाना चाह रही है और इट इज़ नॉट अलाउड फॉर दैट सब्सटेंस टू गो आउट और दैट पर्सन टू गो आउट, तो द गार्ड विल नॉट लेट दैट पर्सन गो आउट. सो इन दैट केस ओनली द ऑथोराइज पर्सन्स कैन कम इन और आउट, गो आउट, whereas जो नॉन ऑथोराइज लोग होंगे वो ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं. एंड दैट्स द करेक्ट एग्जाम्पल और करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सेमी परमिएबिलिटी. दिस इज हाउ सेमी परमिएबिलिटी वर्क्स. दैट सेमी परमिएबिलिटी में क्या होता है कि every substance cannot pass through the cell membrane, the membrane. Only the specific substances can pass through. ठीक है. और this is how the three types of permeability exist in any membrane. ठीक है. Now when we are studying cell wall, we should know that which type of permeability cell wall shows. So now remember that cell wall, although it's a rigid structure, but cell wall is completely cell wall is completely permeable. Cell wall is completely permeable. यानी cell wall is allowing or does not restrict the movement of any molecule which is passing in or out through cell wall. ठीक है. तो it is like an example जहाँ दीवार है, wall है, बहुत important, बहुत मजबूत है, rigid है, but the doors are open. Anything can come in and go out of the cell wall. So these are the basic or general points regarding the cell wall. Now I just would like to give you time to note all these points. Just quickly note these points and then we'll talk about the biochemical composition of the cell wall. ठीक है. यहाँ पर हमें function भी हमने cover कर लिया है. It provides frame. I should underline them, the functions. Provide frames and maintains the
maintains the shape, tolerate the turgor, pressure, preventing from bursting. ठीक है, all these are the functions. So just quickly note these all points and then we'll move forward. Okay guys, have you noted all these points? If you have noted it down, that's good. ठीक है, now let's talk about the, उम्मीद है कि अच्छा बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, उम्मीद है कि आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट सेल वॉल का समझ में आ रहा है कि सेल वॉल, इट जस्ट इमेजिन इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इट इज अ रिजिड मेम्ब्रेन, टफ स्ट्रक्चर, provides support to the cell, maintains the shape of the cell, tolerates the pressure within the cell, and at the same time allowing every substance to pass through it. Okay, these were the general points we have discussed. Now let's talk about the biochemical compositions of cell wall. Now let's talk about the biochemical composition of the cell wall. We'll talk about the biochemical composition of the cell wall. So, as I've told you that cell wall is not the structure that is only present in plants, it is the structure जो सिर्फ एनिमल में नहीं है, इसके अलावा बाकी तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल है. तो वील टॉक अबाउट एवरी वन सेल वॉल वन बाय वन. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्लांट, जो कि आपको मेजरली पढ़ना होता है कि प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में हम क्या बात करते हैं. ओके, तो द सेल वॉल इन प्लांट्स, द सेल वॉल इन प्लांट्स is again a rigid and a tough structure, and it is made up of 70 to 80%. It is made up of 70 to 80% cellulose. It is made up of 70 to 80% cellulose. And what is cellulose? सेल्यूलोज क्या है बेटा? पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. You will learn about beta glucose when you study chapter number 2 with us. Biological molecule जब पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. But for now you need to remember that 70 to 80% or the most dominant component of the cell wall in plants is cellulose. 70 to 80% of the component of the cell wall in plant is cellulose. ठीक है जी. And it is made up of, or it is a polymer of beta glucose. यानी beta glucose के जो units हैं, they are making this. ठीक है. एंड अगर मैं इसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट की बात करूं यहीं पर, तो हाउ इट इज अरेंज एग्जैक्टली, दैट बीटा ग्लूकोज से बनते हैं चेन्स ऑफ बीटा ग्लूकोजेस. क्या मतलब है इसका कि भाई एक बीटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक बीटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा बीटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सारे ये आपस में ज्वाइन होते जाते हैं तो दे फॉर्म चेन. ठीक है, एक चेन बन जाती है. एंड देन दैट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, देन व्हाट हैपेंस टू दैट चेन, द पैरेलल चेन्स, आगे लिख देते हैं यहां पर, पैरेलल चेन्स combine to form cellulose fibrils. इमेजिन कीजिएगा, लेट्स सपोज दिस इज अ बीटा ग्लूकोज यूनिट, दिस इज सेकंड बीटा ग्लूकोज यूनिट. तो ये आपस में इस तरह से ज्वाइन हो गए. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन हो गए. व्हेन दे ज्वाइन टू फॉर्म अ चेन, नाउ मल्टीपल चेन्स, लेट्स सपोज एक और चेन बनी है इसके नीचे, ये सारी चेन्स आपस में ज्वाइन होंगी टू फॉर्म सेलुलोज फिब्रिल्स. देन आफ्टर द सेलुलोज फिब्रिल्स आर फॉर्म्ड,
further fibrils combine to form cellulose fibers, which and hundreds or thousands of cellulose fibers are joined to form the cell wall. ठीक है जी. So that's how the composition in plants is happening. 70 to 80%, the most dominant component of the cell wall is cellulose. It is a polymer of beta glucose. Beta glucose की जो chains हैं, they combine to form chains of beta glucose, and beta glucose की जो chains हैं, then parallel chains combine to form cellulose fibrils, and then cellulose fibrils form cellulose fibers, and then finally they form cell wall. ठीक है. So this is how they are forming. Second component of the cell wall, it's not only the component, second component of the cell wall is a protein. ठीक है. It was a carbohydrate. Second component of the cell wall is protein, which is pectin, and almost 10 to 15% of the cell wall is made up of this component pectin. ठीक है. Pectin, protein, pectin. The second component is protein, which is pectin, and it provides, this is, cellulose is a tough structure, remember. It's a hard, the toughness of the cell wall is due to cellulose. ठीक है. It's a tough structure that gives, जो cellulose के अभी हमने turgidity और ये जो बात की ना कि ये जो है ना बड़ा tensile strength है, rough है, tough है, तो all those characters are given by cellulose. ठीक है. Whereas जो protein है, that gives the cell wall little bit of flexibility. ठीक है. यानी along with the toughness, sometime it has to show flexibility, and for that flexibility वाली thing, the pectin is playing its role. ठीक है जी. तो first component is this carbohydrate, second component is protein, and the thing is that we also have third component, and that's also a protein, not present everywhere in major quantity, but it is there. Another component which is also a protein, and that is lignin. अच्छा, लिग्निन की मैं एग्जांपल क्या दूं? अच्छा, ये ऑलमोस्ट 5% की कॉम्पोजिशन है इसकी. अच्छा, लिग्निन की क्या मैं एग्जांपल दूं, जरा समझिएगा कि लिग्निन की एग्जांपल कैसी है. फॉर एग्जांपल, आपने एक दीवार बनाई है, एक वॉल खड़ी की आपने. ठीक है. सिर्फ ब्लॉक्स से, मेरली ब्लॉक्स के जरिए, और ब्लॉक्स को आपने साथ रख दिया. तो blocks are a tough structure or not? Yes, they are very hard structures. They have a very important supportive role. But मुझे एक बात बताओ कि अगर वो दीवार मैं सिर्फ ब्लॉक से बना दूं और मैं उसमें सीमेंट ना लगाऊं, ठीक है, सीमेंटेड ना हो वो, तो क्या वो वॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी? ऑब्वियसली नॉट. वो वॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि सीमेंट जब तक उसमें नहीं लगेगा, वो जो टफनेस आ रही है वो टेम्परेरी है, यानी विदाउट दैट सीमेंटिंग वाली थिंग वो वॉल कभी भी गिर सकती है. हालांकि सेल्यूलोज इज द, हालांकि ब्रिक्स जो हैं दे आर हार्ड, बट दैट हार्डनेस इज नॉट इनफ अलोन. They require cement in between them so that वो stabilize हो जाए. In the very same way, जो प्रोटीन लिग्निन है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबिलाइज द सेल्यूलोज. जो सेल्यूलोज है, ये दीज आर लाइक ब्लॉक्स, एंड लिग्निन इज द सीमेंट विच स्टेबिलाइज देम. लिग्निन वो सीमेंट है जो स्टेबिलाइज कर देता है सेल्यूलोज फाइबर्स को, और इनको बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ बना देता है. बल्कि अगर कहीं पर लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए और ये सीमेंट इतना ज़्यादा भर जाए, तो क्या होगा कि सेल्यूलोज फाइबर्स के दरमियान जो गैप्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे. ऑल दोज गैप्स विल फिल्ड अप बाय लिग्निन, एंड इन दैट केस सेल वॉल जो सब्सटेंसेस को मूव करा रहा था अक्रॉस इटसेल्फ, वो मूवमेंट रुक जाएगी, एंड दैट सेल ग्रेजुअली बिकम्स अ डेड सेल. एंड दैट्स ट्रू फॉर डेड सेल्स लाइक xylem. For dead cells like xylem, we always see lot of deposition of lignin in them. ये बात समझना, लिग्निन वो कंपोनेंट है कि अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो सेल की डेथ करा देता है. एंड देयर आर सेल्स जहाँ सेल डेथ होती है, जैसे जाइलम जो आपने प्लांट में पढ़ा है. जाइलम इज वन ऑफ द सेल दैट शुड बी मेंशन हियर, दैट यू नो जाइलम इज अ डेड सेल,
and it is dead due to this lignin. Because xylem cells show heavy deposition of lignin in their cell walls, due to which lignin क्या करता है, उनमें जो spaces होती हैं between the cell walls उनको बंद कर देता है, और जो transport होती है अंदर बाहर वो रुक जाती है, and cells gradually dies. And in that case of xylem के केस में ये beneficial होता है प्लांट के लिए, क्योंकि xylem आपको पढ़ा है is a type of vascular bundle जो कि supportive role play करता है. तो होता क्या है कि आपने सेल की तो डेथ करा दी, लेकिन दैट जैसे अगर आपने दीवार अलॉन्ग विद ब्रिक्स बना दी है, तो आप अलॉन्ग विद सीमेंट बना दिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपको वो बहुत मजबूत दीवार मिलेगी. तो इन द वेरी सेम वे जब जाइलम के अंदर सेल्स के जो सेलुलोज फाइबर्स हैं उनके दरमियान हैवी लिग्निन डिपोजिशन हो जाती है, तो ऑब्वियसली द वॉल्स ऑफ द जाइलम बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ, एंड दैट इज व्हाई जाइलम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्ट ऑफ द प्लांट, इन द सपोर्ट ऑफ द स्टेम, इन द सपोर्ट ऑफ द रूट. ठीक है ना. सो दैट्स अबाउट प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स के अंदर दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल. बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, 3 components: carbohydrate, protein. Carbohydrate, cellulose, which is the dominant component. Second component is protein, and third component is also protein, which is the least component in case of cell wall. ठीक है, but this is going to be there, and how they are जो है ना playing their own role. Flexibility, toughness को fully stabilize करना, and the major dominant component that is responsible for the toughness and rigidity is cellulose. So that's all about the composition of cell wall in plants. Inshallah ta'ala, we have more to talk about cell wall but we will do that in next lecture. ठीक है, आज की lecture में इसको यहीं पर end करते हैं. Inshallah, see you guys in the next lecture. Allah Hafiz.